Dear students, in last videos we have discussed about the use of elementary transformations or elementary operations. By elementary transformation we can change a matrix into echelon form or normal form, and then we can find its rank. Now we will use the elementary transformation and only elementary row transformation to find the inverse of a matrix. So now here we go to find the inverse of a matrix using elementary transformation, and we will use only elementary row transformation. Now let us have, let A be a square matrix of order n. Order of A is equal to n. Then we know that we can write this A as A is equal to INA, where this IN is nothing but the identity matrix of order n. Now, in order to find the inverse of A, what we do? First of all, write down the matrix A in left hand side. Whatever be the element of the matrix A, write down the matrix A in left hand side. And similarly, write down the identity matrix in right hand side, 1 0 0 0 1 0 and so on. You know it very well. Therefore write down the identity matrix here, and here just write down the notation of the matrix A, that is capital A. Now using elementary row transformations, reduce this matrix A into identity matrix and apply the same transformation at the same time in this identity matrix in right hand side. What I said? इस मैट्रिक्स को, जो लेफ्ट हैंड साइड में ए मैट्रिक्स है, इसे आपको बदलना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यूजिंग ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशंस, रो ऑपरेशंस, रो का यूज करके केवल आपको इसको कहीं में बदलना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, और जो ऑपरेशन आप जिस समय इस पर लगाओगे वही सेम ऑपरेशन आप इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर भी अप्लाई करोगे. इस तरह से आप इस पर अ फाइनाइट चेन ऑफ रो ट्रांसफॉर्मेशन इस पर अप्लाई करोगे. आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, this matrix will reduce to identity matrix IN, and this matrix will be changed into certain matrix and call that matrix to be B. So then this matrix is reduced to some matrix B, therefore this is B and this is A. Therefore we get a matrix B such that BA is equal to identity matrix. And we know it very well that if some matrix is multiplied to a matrix and we get the identity matrix, then this is the inverse of that matrix. हमने B को A से मल्टीप्लाई किया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, तो इट मीन्स ये B है A का इनवर्स. ये B मैट्रिक्स ही है A का इनवर्स. दैट इज A इनवर्स is nothing but this matrix P. Now इस चीज को क्लियर करने के लिए let us have an example. Example: A is a matrix A is a square matrix of order 3, 1 2 1,
3 2 3 1 1 2, and we have to find inverse of this matrix A. Now let us start. First of all, as we have A is equal to I3A. A is a matrix of order 3, so we can write it A equal to I3A, where I3 is the identity matrix of order 3. Now, अब आप क्या करेंगे? Just write down this matrix A, that is equal to this 1 2 1 3 2 3 1 1 2. Here, write down this identity matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1, and here write down the notation of this matrix A, that is capital A. Now हमको इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशंस. तो हम क्या करेंगे? इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहां पर बनाना है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1. तो इस तरह से देखते हैं आप इस डायगोनल पर आपको क्या रिड्यूस करने हैं 1, और अदर्स एबो एंड बिलो एलिमेंट्स क्या होने हैं इसके 0. तो कैसे करेंगे? आइए, हमें केवल रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम यहां पर 1 जनरेट करेंगे. 1 कहां से आएगा? यहां तो ऑलरेडी 1 है. 1 कहां से आएगा? आपको डायगोनल पर 1 बनाना है, यहां पर यहां पर यहां पर. आप जब कभी 1 बनाएं तो उस एलिमेंट से नीचे के एलिमेंट आप यूज कर सकते हैं. जैसे हमें यहां पर 1 बनाना है तो हम इससे नीचे एलिमेंट है 3 and 1, तो हम इनका यूज कर सकते हैं, इनकी हेल्प ले सकते हैं यहां पर 1 बनाने के लिए. अब ऑलरेडी यहां पर 1 है. मान लीजिए यहां 1 ना होता, यहां 2 होता, यहां 3 होता, यहां 4 होता, तो हम क्या करते? इन तीनों की हेल्प से डिफरेंस लेकर यहां 1 बना सकते थे, और फिर उस 1 को यहां पर ला सकते थे रो ट्रांसफॉर्मेशन से. या फिर हम क्या कर सकते थे? इस पूरी रो को 2 से डिवाइड कर सकते थे और 1 बना सकते थे. तो इस तरह से यहां ऑलरेडी 1 है. अब इस 1 की हेल्प से हमें नीचे रिड्यूस करने हैं हर एक एलिमेंट को 0 में. तो 1 की हेल्प से इसको बनाना है हमको 0. तो ऑपरेशन क्या लगता है? इस 3 को 0 बनाने के लिए इसे 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो ऑपरेशन क्या बनता है? R2 minus 3R1 implies R2. So therefore the operation is R2 minus 3R1 implies R2, and इस तरह से यहां पर 0 बन जाएगा. अब इसी 1 की हेल्प से हम यहां पर भी क्या बनाते हैं? 0 बनाते हैं. उसके लिए हम क्या करेंगे? ऑलरेडी 1 है, तो 1 minus 1 equal to 0, you see. तो therefore क्या ऑपरेशन बना? R3 minus R1 implies R3. R3 minus R1 implies R3, and this implies, जब आप ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो आपकी ये मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स में रिड्यूस होती है? आइए देखते हैं. ये ऑपरेशन आप यहां पर भी अप्लाई करेंगे और यही ऑपरेशन आप इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी अप्लाई करेंगे. तो आइए देखिए ये क्या बन जाती है. ये बनती है 1 2 1, दिस इज 0, दिस इज 0, इसे 3 से मल्टीप्लाई किया, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, दिस इज -4, इसे 3 से किया, दिस इज 0, दिस माइनस दिस किया -1, दिस माइनस दिस किया 1. इसी तरह से आपने ये सेम ऑपरेशन आपने इधर अप्लाई किया आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर. तो ये बन गया आपके पास में 1 0 0, इसे 3 से मल्टीप्लाई किया, सब्ट्रैक्ट किया, इसमें से -3, ये हुआ 1, ये 0, दिस माइनस दिस किया आपने, -1 0 1, और इस तरह से यहां पर लिखिए आपने A. नाउ यू सी फर्स्ट कॉलम आपका रिड्यूस हो चुका 1 0 0 में. अब आपको क्या करना है? आइए, इससे नेक्स्ट एलिमेंट है ये, नेक्स्ट पोजीशन ये हो गई आपके डायगोनल पर. इसे बनाना है 0 1 0. तो यहां पर 1 बनना है, और मैंने आपको बताया कि किसी भी पोजीशन पर जब आप 1 बनाओगे डायगोनल पर तो उससे नीचे के एलिमेंट का आप यूज कर सकते हैं, ऊपर के एलिमेंट का यूज नहीं करेंगे. क्योंकि यदि आप ऊपर के एलिमेंट का यूज करेंगे तो पिछला जो कॉलम आइडेंटिटी कॉलम बना है 1 0 0, ये डिस्टर्ब हो जाएगा फिर से. तो आपको क्या करना है? आइए, यहां पर 1 बनाना है,
ये 1 बनाने के लिए आप इससे नीचे के एलिमेंट का भी इसके साथ यूज कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं यहां 1 बनाने के दो तरीके हैं, या तो हम इस रो को -4 से डिवाइड कर दे तो भी यहां 1 रिड्यूस हो जाएगा, या फिर इसको हम यहां पर ले आए और फिर -1 से मल्टीप्लाई कर दे तो भी यहां पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम दोनों ऑपरेशन में से कोई सा भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो हमने यहां क्या किया, इसको 4 से डिवाइड किया, हमने ऑपरेशन लगाया R2 अपॉन डिवाइडेड बाई -4 इंप्लाइज R2। तो तब क्या हुआ, आइए देखते हैं क्या बन गया, 1 2 1 0 1 0 0 -1 1। सेम ऑपरेशन आपने राइट हैंड साइड में ऑपरेट किया, 1 0 0 3/4 -1/4 0 -1 0 1 and here you write down A। now you see इस तरह से आपने यहां पर 1 रिड्यूस कर लिया, ये डायगोनल का जो ये एलिमेंट है। अब नाउ इसी की हेल्प से यहां ध्यान से देखिए, इस 1 की हेल्प से आपको नीचे भी 0 बनानी है और इस 1 की हेल्प से ऊपर भी 0 बनानी है। तो ऑपरेशन देखिए क्या लगता है, 1 की हेल्प से नीचे 0 बनानी है तो ये 1 इसमें ऐड हो जाएगा। क्या मतलब, R3 में R2 ऐड हो जाएगा। तो ऑपरेशन बना R3 प्लस R2 इंप्लाइज, देखिए यहां पर 1 बन गया है, ये हमने -4 से डिवाइड कर दिया इसको, तो ये 1 बन गया। इस 1 की हेल्प से अब हमें नीचे 0 रिड्यूस करना है और ऊपर भी 0 बनाना है। तो इस तरह से हम देखते हैं इस 1 की हेल्प से ये 0 कैसे बनेगा। अभी मैंने बताया कि हम इसको इसमें ऐड कर देंगे। क्या मतलब, R3 प्लस R2 इंप्लाइज R3 एंड देन हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे। तो इसे 2 से मल्टीप्लाई किया और इसमें से सबट्रैक्ट किया, दैट मीन्स ऑपरेशन हुआ R1 माइनस 2R2 implies R1। then this matrix reduced to, you can easily see this matrix reduced to 1 0 0, ये बन जाएगा 0 0 1। और इस तरह से आपने इसकी हेल्प से आपने किया तो ये रहेगा 1 0 1 1 0 1, सॉरी ये बनेगा 0 1 0, ये बनेगा 0 1 0 और ये हो जाएगा 1 0 1। ये ऑपरेशन आप इस पर अप्लाई करके देख सकते हैं और ये बन जाएगा आपके पास में -1/2। आपने क्या किया, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया और इसमें से सबट्रैक्ट किया, तो ये हो गया आपके पास में 3/2, 1 -1/2 एंड दिस इज 1/2, दिस इज 0। ये आपका वही रहा 3/4 -1/4 0। यहां क्या किया था आपने, जो ये ऑपरेशन लगा R3 प्लस R2 इंप्लाइज R3, इन दोनों को ऐड किया आपने, तो ये आ गया आपके पास में -1/4 एंड दिस इज 1। नाउ यू सी, इस तरह से हमने इस डायगोनल पर सेकंड एलिमेंट को भी 1 रिड्यूस किया और 1 की हेल्प से नीचे भी 0 और ऊपर भी 0। इस तरह से हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम भी बन गया 0 1 0। अब आइए हम तीसरा कॉलम बनाते हैं आइडेंटिटी का, दैट इज 0 0 1। अब यहां थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, हमें यहां चाहिए 0 0 1। तो सबसे पहले तो आप यहां क्या बनाएंगे, 1। अब इस 1 बनाने के लिए मैं यही आपको थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा कि इस 1 को बनाने के लिए मैंने आपको बताया कहीं भी आपको 1 जनरेट करना है डायगोनल पर, तो आप उससे नीचे के एलिमेंट का यूज करेंगे, हेल्प लेंगे 1 बनाने के लिए, यदि आवश्यकता हुई तो हेल्प लेंगे, लेकिन इससे नीचे कोई है नहीं। ऊपर के एलिमेंट का कभी आप हेल्प नहीं लोगे किसी एलिमेंट को 1 जनरेट करने के लिए। इसलिए यहां पर यदि 2 होता तो मैं क्या करता, यहां पर 2 से इसको डिवाइड कर देता, केवल इस रो को 2 से डिवाइड कर देता। तो नाउ thus we get the 1 at the required position। now we will reduce all the element lying below and lying above to be 0। इस 1 की हेल्प से हम ऊपर नीचे सभी एलिमेंट को क्या रिड्यूस करेंगे, 0। अब नीचे तो कोई है नहीं, तो ऊपर के ये ऑलरेडी 0 है, तो इसको 0 बनाना है, उसके लिए हम इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर देंगे। तो ऑपरेशन बन जाएगा आपके पास में R1 माइनस R3 इंप्लाइज R1। देन ये क्या बनता है, देखिए
ये हो गया आपके पास में 1 0 0 0 1 0 और ये हो जाएगा आपका 0 0 1 और इधर आप देखते हैं सेम ऑपरेशन आपने यहां पर अप्लाई कर दिया R1 माइनस R3 तो ये बन जाएगा आपके पास में -1/4 दिस माइनस दिस दैट इज इक्वल टू 3/4 दिस माइनस दिस -1 नाउ दिस इज 3/4 -1/4 0 -1/4 -1/4 and this is 1 and this is sorry यहाँ पर a लिखेंगे आप और this is a. Now you see this matrix is the identity matrix I3 and this is some matrix we can say it to be B and this is A. So therefore we get I3 means identity matrix is equal to B into A. B into A. Now which immediately implies अब आप देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई आपकी ये सर्टेन मैट्रिक्स है इसको हमने बी बोल दिया और ये ए आपका ऑलरेडी है तो बी ए इज इक्वल टू I3 हो गया और हम जानते हैं कि यदि हम ए को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आइडेंटिटी आ रही है तो इट मीन्स ये मैट्रिक्स है इसका इनवर्स दैट इज ए इनवर्स इज इक्वल टू बी एंड बी इज दिस -1/4 3/4 -1 3/4 -1/4 0 -1/4 -1/4 1 this is the inverse of A. So by this process we can find the inverse of a matrix. Now we take another example. This is a matrix A 1 2 3 2 4 5 3 5 6 and we have to find its inverse by using elementary row transformation. So let us have. First of all we write A equal to I3A. Now write down the matrix A in left hand side that is 1 2 3 2 4 5 3 5 6 and that is equal to write down the identity matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1 and here just write down the notation of the matrix A that is A. Now we have to reduce this matrix into identity matrix by using only row transformation. So first of all we reduce this column into 1 0 0 then it 0 1 0 and then it 0 0 1. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिड्यूस दिस इनटू 1 0 0. सबसे पहले हमें क्या बनाना है इसमें 1 0 0 और केवल रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना है तो मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं सारा प्रोसेस. सबसे पहले यहां पे आपको 1 बनाना है. यहां ऑलरेडी 1 है. मान लीजिए यहां 1 नहीं है तो आप 1 दो तरह से बना सकते हैं या तो नीचे के इससे नीचे के एलिमेंट का आप यूज कर सकते हो 1 बनाने के लिए या फिर इसको उसी एलिमेंट से डिवाइड कर दीजिए जो यहां पर है. मान लीजिए यहां पर 3 है तो 3 से डिवाइड कर दीजिए 1 बन गया. मान लो यहां 0 है तो नीचे के एलिमेंट का यूज करके 1 बनाइए और वो 1 यहां पर लाइए रो ट्रांसफॉर्मेशन से. तो आपको सबसे पहले यहां पर क्या बनाना है 1 और फिर उस 1 की हेल्प से नीचे बनानी है 0. यहां ऑलरेडी 1 है तो 1 की हेल्प से हमें इनको कहीं में रिड्यूस करना है 0 में. उसके लिए 1 की हेल्प से करना है 2 को 0 तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑपरेशन बना R2 माइनस 2R1 implies R2. सिमिलरली यहां 0 रिड्यूस करना है 1 की हेल्प से तो हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑपरेशन बना R3 माइनस 3R1 implies R3. ये ऑपरेशन आप इस मैट्रिक्स में भी अप्लाई कर दीजिए और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी आपको अप्लाई करने हैं. तो ये क्या बन जाता है आइए देखते हैं. ऐसा करने से क्या होता है कि आपने इसे यहां पर बन जाएगा आपके पास में 1 0 0 1 0 0 और यहां पर क्या होगा इसे 2 से मल्टीप्लाई किया इसमें से सब्ट्रैक्ट किया ये सेम रहेगा 2 3 ये आपके पास में चेंज हो जाएगा. तो ये क्या बन गया आपके पास में ये बन गया 0 इसे 2 से मल्टीप्लाई किया -1 और ये हो गया -1 एंड दिस इज -3. नाउ अगेन अप्लाई द सेम ट्रांसफॉर्मेशन इन राइट हैंड साइड एंड दिस इज 1 0 0 this becomes -2 1 0 -3 0 1
एंड दिस इज ए। तो ये ऑपरेशन आप अप्लाई कर दीजिए, ये मैट्रिक्स इसमें बन जाएगी। नाउ अगेन दस वी गेट 1 0 0। नाउ वी हैव टू रिड्यूस दिस 0 1 0। तो यहां पर आपको 1 बनाना है। अब यहां देखिए 1, यहां तो 0 है, तो अब यहां 1 कैसे बनेगा? 1 बनाने के लिए हम नीचे के एलिमेंट का यूज करेंगे, कभी ऊपर के एलिमेंट का यूज नहीं करेंगे। इससे नीचे है -1, तो हम इसकी हेल्प से यहां 1 बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको यहां पर कैरी करेंगे और यहां पर -1 से डिवाइड कर देंगे या -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले ऑपरेशन क्या लगा हमारा, R2 इंप्लाइज एन इंप्लाइड बाई R3। तो ये क्या बन गया आपके पास में ऐसा करने से, 1 2 3 0 -1 -3 0 0 -1। यही ऑपरेशन आप इधर भी अप्लाई कर दीजिए, 1 0 0 -3 0 1 एंड दिस इज -2 1 0। इस तरह से ये आपके पास में बन गया। नाउ अब आपका यहां पे -1 है, हमें 1 बनाना है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो -1 इंटू R2 इंप्लाइज R2। तो ये मैट्रिक्स रिड्यूस हो गई आपकी इस तरह से, 1 2 3 0 1 3 0 0 -1। इधर भी आप R2 को माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 0 0 3 0 -1 -2 1 0 एंड दिस इज ए। नाउ आप देखते हैं 1 हमारा यहां पर डायगोनल पर सेकंड एलिमेंट बन चुका। अब इसकी हेल्प से हमें नीचे 0 बनानी है और ऊपर 0 बनानी है। आपने देखा नीचे तो ऑलरेडी 0 है, ऊपर इस 2 को 0 बनाना है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करके हमने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया। तो ऑपरेशन बना R1 माइनस 2R2 इंप्लाइज R1 एंड देन दिस इंप्लाइज क्या बन जाता है ये, आइए देखते हैं। ये मैट्रिक्स रिड्यूस हो जाती है आपकी 1 0 0, ये बन जाएगा 0 1 0। आपने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो ये बनता है -3 3 -1। और इधर जब यही ऑपरेशन आप इस पर अप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है आपके पास में, इसे 2 से मल्टीप्लाई -5 0 2 एंड 3 0 -1 -2 1 0 and this is into A. Now thus you get the second column of the unit matrix identity matrix 0 0 1 0. Now you have to reduce this column 0 0 1. तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना, ये डायगोनल का फर्स्ट एलिमेंट 1, दूसरा एलिमेंट 1, तीसरे एलिमेंट को भी क्या बनाना है 1, और उस 1 की हेल्प से नीचे ऊपर क्या बनाने हैं 0। मैं फिर से रिपीट करता हूं, यहां 1 बनाने के लिए, किसी भी एलिमेंट को डायगोनल पर 1 बनाने के लिए हम नीचे के एलिमेंट का हमेशा यूज करेंगे, कभी ऊपर के एलिमेंट का यूज नहीं करेंगे। ये हमें ध्यान रखना है। यहां ऑलरेडी -1 है, अब कैसे इसको 1 बनाए, तो इस रो को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या बन जाता है आपके पास में, दैट इज -R3 implies R3, then it reduced to 1 0 -3, oh sorry, हाँ yes, 0 1 3 0 0 1। apply the same operation in right hand side, -5 0 2 3 0 -1 multiplied by -2 -1 0 and write it A. Now using this one reduce all the elements above it to be 0. इनको क्या बनाना है 0। इसको 0 करने के लिए हम इसे करेंगे 3 से मल्टीप्लाई और इसमें हम इसको ऐड करेंगे। तो ऑपरेशन बन गया आपके पास में R1 प्लस 3 R3 इंप्लाइज R1, और दूसरा ऑपरेशन हमारा बनेगा, इसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 0 हो जाएगा। R2 माइनस 3R3 इंप्लाइज R2। तो देखिए ऐसा करने से ये क्या बन जाता है, हमारा यहां पर क्या आ जाता है, आइए ये मैट्रिक्स हमारी रिड्यूस हो जाएगी 1 0 0 0 1 0 और ये बन जाएगा 0 0 1। नाउ अगेन दिस बिकम्स, ये ऑपरेशन जब आप इसमें अप्लाई करेंगे तो ये बन जाता है आपके पास में 1 -3 2 1 -3 2, yes 1 -3 2 yes।
this become -3, 3, -1, and this is 2, -1, 0, and this is A. Now you see this is an identity matrix I3. This is some matrix, we can say it to be B, and this is A. Therefore I3 is equal to BA. Now this implies A inverse is equal to B, and B is 1 minus 3, 1 minus 3, 2, minus 3, 3, minus 1, and this is 2, minus 1, 0. Therefore, this matrix is the inverse of A. So therefore, A inverse is equal to B. That is simply this matrix is the inverse of the matrix A. And thus, using elementary row transformation, we can find easily the inverse of a given matrix. Dear students, let us recap the process. If we are going to find the inverse of a matrix by using elementary row transformation, then just write down the matrix A equal to I into A. Then reduce this matrix into identity matrix by using only row transformation and apply the same transformation into I, so that this I reduced to some matrix B and A as it is. Therefore, we get identity matrix equal to B into A, and this implies that this B is nothing but itself the inverse of A. That is, A inverse is nothing but B. Therefore, we can find the inverse of a given square matrix. So that is all in this video, and I think आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं. तो इस तरह से हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं. थैंक यू.